students, welcome to today's class. As you all know that from the Monday onwards, from 3rd of May, there is a assessment test of each subject. I hope you guys are preparing well for that. And one more effort from our side is that the next two videos are going to be the revision lectures. Okay? I will try to cover all those topics which I feel that you might be facing problem there, and the topic which we will discuss, although we will try to cover each and every topic in the revision lecture also, but still our main focus will be on some of the topics. Various students call me and they say, sir, we are facing problem here, so we will try to cover these topics in more detail, right? So the chapter which is the part of your assessment test is unit 3, that is periodic classification of elements. Simply it's classification of element and periodicity in the property. The very first question which arises here is that why do we need to classify elements? ठीक है, जरूरत ही क्यों? So simple answer is that every element has many properties. Means every element has some physical property, every element has some chemical properties, and all those properties are not one or two in the numbers, they are large in numbers. So it's very difficult for us to memorize all the physical and chemical properties of each and every individual element. So what we try to classify the elements. And how do we classify, or what main point we keep in our mind while classifying the elements? Answer is okay, we try to classify the elements in such a manner that elements with the similar properties are in a same group. I repeat, elements having similar physical and chemical properties lie or fall in the same group, and the elements which are not showing or which are not having similar physical and chemical properties, they are placed in different groups. ठीक है, तो यहाँ पर हमें उन सब एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ग्रुप में रखना है, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है we will place these element in the different groups. Various attempts were made. ठीक है, बहुत सारे attempts आए. Like in the very starting, various scientists tried to classify the elements in the terms of metals, non-metals and metalloid, but that classification was not sufficient enough. ठीक है, helpful थी but was not so much helpful. Then there was a scientist known as your Daubernier. Daubernier came in existence and he gave us a law known as law of triads. Law of triads, right? Tri stands for 3. Now what this law states, this was discovered by Daubernier. I still remind you, this is Daubernier's triad, or simply you say law of triads. तो उसने क्या कहा? He said that I will select any 3 element. For example, I am having lithium, sodium and potassium, and I arrange in increasing order of its atomic mass. Like atomic mass of this is 7, lithium का atomic mass is 7 and of potassium is 39. Now what Daubernier triad states that when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then mass of second element, ठीक है, means mass of second element will be equal to mass of 2 elements, के lithium का mass plus potassium का mass divided by 2. यानी कि mass of second element is equal to average of other 2. Average of other 2. ठीक है, so we are taking here a triad lithium, sodium and potassium. Atomic mass of sodium will be equal to 7 plus 39 divided by 2. Answer will be 23. And today we know that this is the atomic mass of sodium. कि सोडियम का atomic mass इतना ही है. तो Daubernier triad was a good
कि इससे हम 2 एलिमेंट को याद करते तो थर्ड ऑटोमेटिकली याद हो जाता। बट इसकी लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन वाज कि वो जो ट्राइड की वो बात कह रहा था वो नंबर में बहुत कम थे। क्लास 10th तक हम आपको बताते हैं कि सिर्फ 3 ही वो ट्राइड वो ढूंढ पाया, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे ही वो ढूंढ पाया था। बैरियम का मतलब फ्रॉम ग्रुप 2 आल्सो देयर वाज अ ट्राइड। ठीक है, ग्रुप 2 से जो ट्राइड आता है वो क्या है देखें, वो आपके पास आता है कि कैल्शियम है आपके पास एक एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट ट्राइड। सेकंड ट्राइड वाज ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम। ठीक है, सो दिस वाज माय सेकंड लॉ ऑफ ट्राइड। एंड थर्ड ट्राइड जो हमें मिला था, थर्ड ट्राइड वाज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 3 ट्राइड ही हम लोग ढूंढ पाए थे, तो इसलिए डॉबर्नियर ट्राइड वाज गुड। बट लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन थी कि भाई हम ऐसे ऐसे ट्राइड बहुत कम ढूंढ पाए। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, जैसे कि आपके पास आया न्यूलैंड, जिसको हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोलते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्लास 10th में जो पढ़ते हैं वो ही बिल्कुल सेम आती है यहाँ पर कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहेगा। ये सिंपली आपको कहेगा कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो क्लास 10th में पढ़ा हमने वही यहाँ पर भी है। एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सिंपली स्टेट्स दैट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर। जैसे म्यूजिकल नोट्स में होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी और सा, यानी कि पहला नोट क्या है सा और एट्थ नोट भी क्या है सा, तो फर्स्ट और एट्थ नोट क्या हुए? सेम हुए। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या कहा? ही सेड कि when elements are arranged in increasing order of its atomic mass, ठीक है, एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट और जो एट्थ एलिमेंट आएगा उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी आने वाली है। दिस वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बट व्हाट वाज इट्स लिमिटेशन? लिमिटेशन वाज क्वाइट सिंपल दैट ये दिस लॉ वाज वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली, कि सिर्फ कैल्शियम तक ये बात ठीक जो है समझ आती थी। दूसरा कि न्यूलैंड ने जब वो लॉ बनाया तो उसने ये बात इमेजिन करी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट्स ही होंगे, इससे ज्यादा एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इससे ज्यादा एलिमेंट कभी होंगे ही नहीं। तो इसलिए उसने यही मान के चला कि सिर्फ इतनी एलिमेंट और इसको मैंने अरेंज कर लिया। बट रियलिटी इज दिस कि वो तो सिर्फ 20 एलिमेंट्स को जो है अरेंज कर रहा था। आज के टाइम में वी हैव 118 एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब उसकी वो बात भी क्या थी? गलत थी। इसके बाद हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आया ला, दैट वाज योर मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव भी आप सबको याद है, क्लास 10th में आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं उसको, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब मेंडलीव क्या कहता है? ठीक है, ध्यान से समझना, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, उसने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, या इसको मैं दूसरी वर्ड्स में कह सकता हूं कि अगर आप एलिमेंट्स को क्या करें? अरेंज करें, एलिमेंट्स arranged in increasing order of their atomic mass, then properties of the elements get repeated, after certain regular interval। ये चीज हम क्लास 10th में सीख चुके हैं।
ठीक है, कि मतलब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखेंगे कि भाई जिसका मास सबसे कम है उसको पहले, फिर उससे ज़्यादा मास, फिर उससे ज़्यादा मास, फिर उससे ज़्यादा मास, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल, उसने नहीं बताया कि वो इंटरवल कितना है, बट आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है, इसी के बेस्ड हमारे पास एक टेबल भी आई। जो टेबल आई, उस टेबल ने हमें एक जो है बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया, जिसको हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसकी एप्लीकेशन क्या थी, एप्लीकेशन थी कि भाई देखो, मेंडलीव ने उस टाइम के जितने भी एलिमेंट्स थे सबको अरेंज किया, पहली बात। दूसरी बात कि उस टाइम पर मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप रखे। ठीक है, देयर वर सम गैप, जैसे एल्यूमिनियम के बाद एक गैप रखा, ऐसे ही उसने जो है सिलिकॉन के बाद एक गैप रखा, और उसने कहा कि भाई इस गैप में जो है अभी एलिमेंट नहीं है, जिस दिन ये एलिमेंट डिस्कवर होगा उसको हम यहाँ रखेंगे, और जब यहाँ रखेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते थे। ठीक है, क्लास 10th में इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलता है कि मेंडलीव लेफ्ट सम स्पेसेस आफ्टर एल्यूमिनियम एंड जो है सिलिकॉन, और एल्यूमिनियम के बाद जो गैप उसने रखा था उसने उसका नाम रखा था एका एल्यूमिनियम। ऐसे सिलिकॉन के बाद जो उसने गैप रखा उसका नाम रखा एका सिलिकॉन। अब ये जो एका एल्यूमिनियम जो आया, जो मेंडलीव ने कहा था कि भाई इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, तो जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ, और वो कौन सा एलिमेंट था, गैलियम था। कौन सा एलिमेंट था, गैलियम। तो गैलियम जिस दिन डिस्कवर हुआ तो हमें पता चला कि इसकी वही प्रॉपर्टी है जो मेंडलीव ने कही थी, यानी कि ऐसे ही एका सिलिकॉन एक्चुअल में कौन सा एलिमेंट है, वो एलिमेंट है जर्मेनियम। जर्मेनियम जिस दिन डिस्कवर हुआ तो हमें पता चला कि भाई इसकी भी वही प्रॉपर्टी है जो मेंडलीव ने कही थी। इसका मतलब ये हुआ कि मेंडलीव ने उस टाइम के नॉन एलिमेंट्स को तो अरेंज किया ही किया, उसके साथ साथ वो एलिमेंट्स जो उस टाइम डिस्कवर नहीं भी हुए थे और डिस्कवर होने से पहले उसने उनकी प्रॉपर्टीज को बता दिया। ठीक है, पहले उसकी प्रॉपर्टीज को बता दिया। उसके बाद जो है उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रख रहा हूँ, तो उसने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को करेक्ट भी किया कि भाई इसका ये नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन जहाँ मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी एप्लीकेशंस थी, वहाँ कुछ लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन सबसे पहले तो यही थी कि भाई उसने आइसोटॉप को कोई पोजीशन नहीं दिया। ठीक है, नो पोजीशन टू द आइसोटॉप। पोजीशन टू द आइसोटॉप का मतलब क्या हुआ, भाई आइसोटॉप होते क्या है, आइसोटॉप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन है, 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम का मास अलग अलग है, यानी कि एलिमेंट तो एक ही है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखना था तो अकेले हाइड्रोजन को 3 अलग अलग पोजीशंस पर रखा जा सकता था, यानी कि उसने आइसोटॉप्स की कोई बात नहीं की। ऐसे ही उसने जो है कहा कि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखूंगा, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे कि जिनका मास ज्यादा था उसको पहले रखा गया, और जिनका मास कम था उसको बाद में रखा गया। ठीक है, यू कैन चेक इट आउट एट द प्लेस ऑफ निकल एंड कॉपर, यू विल फाइंड आउट कि जिसका एटॉमिक मास जो है ज्यादा है वो पहले है, जिसका एटॉमिक मास कम है वो बाद में है। ठीक है, तो ये आपका काम रहा कि चेक करेंगे कौन पहले है कौन बाद में है। इसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे, हेनरी मोसले। हेनरी मोसले गेव अस एन आइडिया, और आइडिया क्या था, आइडिया था कि भाई उसने कहा कि देखो, अब तक जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखो, लेकिन एटॉमिक नंबर इज अ बेटर प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। ठीक है, वहीं से एक पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर गई, और वहां पर मेंडलीव से आगे जब हम पढ़े तो हमारे पास एक लॉ आया जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में फर्क सिर्फ इतना सा है कि जहां पर एटॉमिक मास यूज हुआ है वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एटॉमिक नंबर यूज करेंगे। ठीक है, मतलब मेंडलीव ने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे मेंडलीव ने कहा था एलिमेंट अरेंज्ड इन
पीरियोडिक लॉ बन जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहेगा? एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स गेट रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। एक आफ्टर रेगुलर इंटरवल वो प्रॉपर्टीज क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। और इसी रिपीटेशन को हम लोग एक और नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब कि रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक जब हम पहुंचे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने हमें कुछ नई टर्म्स भी सिखाई। ठीक है, वो नई टर्म्स क्या थी? देखें, वो नई टर्म थी कि भाई अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कि मैं उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, या फिर एक और नाम है ऑल्सो नोन एज बोहर्स पीरियोडिक टेबल। बोहर्स पीरियोडिक टेबल। अब बोहर्स पीरियोडिक टेबल आने से ये मत समझें कि वो बोहर ने डिस्कवर करी थी, नहीं, बोहर का कोई इसमें रोल नहीं था। लेकिन हाँ, आपने क्लास 9th में नेल बोहर के बारे में पढ़ा है, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा है। वो जो नेल बोहर का जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे वो इस पीरियोडिक टेबल से एक्सप्लेन हो पा रहे थे। जब एक्सप्लेन हो पा रहे थे तो मतलब जो है हमने, क्योंकि बोहर ने जो कहा वो सब बातें यहाँ वैलिड थी, इसलिए हमने उसके जो है सम्मान में, उसके रिस्पेक्ट में बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब मेंडलीव की भी एक टेबल आई और मॉडर्न भी एक पीरियोडिक टेबल आई। दोनों में से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या एडवांटेज रहा? तो आंसर देखें कि भाई जो मेंडलीव की लिमिटेशन थी वो इसमें नहीं थी। जैसे मेंडलीव जो है आइसोटॉप्स के बारे में कुछ नहीं बोलता, यहाँ आइसोटॉप की जरूरत ही नहीं थी। वो नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी को बता सकता था, ये भी बता सकते थी। ठीक है, उसने सारे नॉन एलिमेंट्स और अनडिस्कवर्ड को अरेंज किया, ये भी कर सकती थी। मतलब यहाँ पर जो लिमिटेशन रही जो आइसोटॉप वाली मेंडलीव के केस में, वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, तो इसलिए आज हम जिसकी बात करेंगे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ही फॉर्म करते हैं। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की आप बात करते हैं तो यहाँ पर दो टर्म्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक ग्रुप किसको कहते हैं? ग्रुप ऐसी लाइंस होती हैं, ठीक है ना। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो आपको एक लेआउट मैं दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा सा होता है, ऐसी कुछ दिखती है आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर ऐसी जो लाइंस होंगी, ऐसे वाली, वो क्या होंगी? ग्रुप होंगी। जो ऐसे लाइन होंगी लेटी हुई, वो क्या होंगी? पीरियड्स होंगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ग्रुप और पीरियड क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम पढ़ रहे हैं, क्या इसकी भी कोई लिमिटेशन है? आंसर इज बिल्कुल है। पहली लिमिटेशन ये है कि भाई इसमें जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल है। हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ 1 होती है, लेकिन 1 क्यों होती है इसका हमारे पास जो है बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं, उसको ग्रुप 1 में रखना चाहिए, उसको ग्रुप 17 में रखना चाहिए। ठीक है, मतलब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे लिए यहाँ बहुत बड़ा एक चैलेंज होती है। दूसरा कि ये जो नीचे वाली दो लाइंस है इसको हम लोग बोलते हैं मेन बॉडी। दिस इज मेन बॉडी। कि भाई ये जो दो लाइंस हैं वो एक्चुअल में यहाँ नहीं आती। ठीक है, मतलब हम इसको चाह के भी ऊपर इंक्लूड नहीं कर पा रहे, ये भी उसकी एक लिमिटेशन है। अच्छा, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंदर दो सीरीज है। जैसे ऊपर वाली जो सीरीज है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड। ऐसे नीचे वाली जो सीरीज होती है उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है,
जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स हैं इनको हम मेन बॉडी में नहीं इंक्लूड कर पाए, ये भी हमारे पास क्या थी, लिमिटेशन थी। ठीक है, इससे आगे हम जब चलें, so let's continue. We have to discuss nomenclature of element with atomic number greater than 100. Some of you students called me कि सर हमें ये टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स वी हैव इन दिस चैप्टर। एक्चुअल में देयर इज अ इंस्टीट्यूशन नोन एज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। काम क्या है? काम है कि पूरे वर्ल्ड में कुछ रूल रेगुलेशन बना रखे हैं। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी जो है लैब्स काम करती हैं, हर एक लैब में बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं। तो इस संस्था ने कहा कि भाई आप अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट डिस्कवर करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है तो आप उसका नाम रख सकते हैं। और जब आप नाम रखने जाएंगे तो आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, वो चीज़ें क्या है? देखो, वो कहती है कि अगर मान लेते हैं कहीं नंबर में आ गया 0, आई राइट इट हियर, कि नंबर में आया 0, तो 0 के लिए यूज द वर्ड निल। ठीक है, ऐसे ही नंबर आया 1 के लिए आप यूज करेंगे अन, UN, अन। 2 के लिए यू विल यूज बाय। ठीक है, 3 फॉर 3 यू विल यूज ट्राई, फॉर 4 यू विल यूज क्वाड, for 5 you will use pent, for 6 you will use hex, for 7 you will use sept, for 8 you will use oct, and for 9 you will use ENN। ठीक है, ये एक नंबर है। प्लस इसका जो दूसरा रूल उसने कहा कि भाई अगर एलिमेंट 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर का है तो हर एक के नाम के लास्ट में आपको यूज करना है EM, यानी कि यूज EM एट एंड ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक एलिमेंट डिस्कवर किया जिसका एटॉमिक नंबर है 105। आपने क्या लिखा? एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 105, और जब 105 है तो 1 के लिए देखो क्या यूज करना है। 1 के लिए यूज करना है अन, UN, प्लस 0 के लिए क्या यूज करना है? 0 के लिए यूज करना है निल, प्लस 5 के लिए क्या यूज करना है? 5 के लिए यूज करना है पेंट। अब क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तो नाम के लास्ट में क्या आ जाएगा? EM। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? अन, निल, पेंट, EM। बस आपको जोड़ देना है। ठीक है, और इसका सिंबल क्या आ जाएगा? सिंबल विल बी, यहां से उठाओ U, यहां से उठाओ N, और यहां से उठाओ P, यानी कि इसका सिंबल आ जाएगा UNP। फिर से समझते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? उसका एटॉमिक नंबर है 118। ठीक है, 118 का नाम रखना है। तो 1 के लिए क्या यूज करना है? अन, प्लस ये भी 1 है, इसके लिए भी क्या यूज करेंगे? अन। 8 के लिए क्या यूज करेंगे? ऑक्ट, प्लस क्योंकि 100 से ज्यादा है तो नाम के लास्ट में क्या लगाना है? EM। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? अन ऑक्टियम। ठीक है, और इसका सिंबल क्या आ जाएगा? इट्स सिंबल विल बी, यहां से उठाया U, यहां से भी उठाया U, पहला लेटर उठाने और फिर उठाया O। इट्स सिंबल विल बी UUO। मान लेते हैं एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर इज 126। 126 में देखो 1 के लिए क्या लिखेंगे? अन, 2 के लिए क्या यूज करेंगे? बाई, और 6 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हेक्स, और नाम के लास्ट में क्या आ जाएगा? EM। तो नेम क्या आ जाएगा? नेम इज गोइंग टू बी अन बाय हेक्सियम। ठीक है, एंड व्हाट विल बी इट्स सिंबल? इट्स सिंबल विल बी, यहां से उठाया U, यहां से उठाया B, और यहां से उठाया H, मींस U, B and H। its symbol will be U, B and H। ठीक है, so you can note here
भी एलिमेंट का अगर आपको सिंबल लिखना है, नाम लिखना है, पहले उसका एटॉमिक नंबर लिख लो। एटॉमिक नंबर में देख लो क्या क्या यूज हुआ, जो यूज हुआ इस काउंटिंग में से वो आपको वर्ड लिखना है। काउंटिंग में से वो वर्ड लिखना है और नाम के लास्ट में क्या लगा देना है, IUN। दिस इज सो सिंपल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द मोस्ट awaited topic, that is your electronic configuration, and even I can say one of the most controversial also. Why controversial? क्योंकि some of you called me and said कि sir electronic configuration बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। So here we are, let's try it one more time. Electronic configuration क्या होता है? Electronic configuration का सीधा सीधा मतलब होता है distribution of electrons, ठीक है। क्या मतलब है distribution of electrons? Distribution ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। याद करो क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ी थी और वो क्या था, बोहर कॉन्फ़िगरेशन। बोहर्स कॉन्फ़िगरेशन, जो बोहर का कॉन्फ़िगरेशन था उसमें बोहर ने कहा कि देयर आर डिफरेंट डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स, ठीक है। एक का नाम दिया के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8। एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 18, ठीक है। इवन एक फॉर्मूला था क्या, 2n², वेयर n may be equal to 1, 2, 3 and so on, कि भाई n की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे और n is equal to 1, n is equal to 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब कि k की वो बात कह रहा है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज 2। ऐसे ही फॉर n is equal to 2, मतलब कौन सा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट को उसने नाम क्या दिया था, l फॉर्मूला में पुट करो, 2 × 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये वो फॉर्मूला है जो क्लास 9th में हमने सीखा और जिससे हम ये बता सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे k के अंदर 2, l के अंदर 8, m के अंदर 18, कैसे पता चला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन चीजें यहाँ नहीं रुकती, बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए और एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें जो है वो सारी बातें नहीं पता चलती जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आती हैं, ठीक है। तो उन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपने नेल बोहर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया, और नेल बोहर के कॉन्फ़िगरेशन में जब चेंज किया तो जो नया कॉन्फ़िगरेशन आया, ठीक है, जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन है, न्यू कॉन्फ़िगरेशन इज written in terms of S, P, D and F, कि भाई इनके टर्म्स में हमें लिखना है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि इसका नाम ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, शेल है, सब शेल है। फॉरगेट दैट ऑल, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ इतना सा है कि नेल बोहर ने नाम रखा था ना KLM, नेल बोहर ने नाम रखा था KLM। ऐसे ही जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम उसको KLM की भाषा में नहीं लिखेंगे, उसके टर्म्स में नहीं लिखेंगे। हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, हम लिखेंगे S, P, D और F के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, S, P, D, F। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको यहाँ कुछ बात याद करके चलनी पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ बात याद करके चलनी पड़ेगी, और वो क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S वो कितने आते हैं, 2 आते हैं। जैसे K के अंदर कितने आते हैं, 2, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ S के अंदर कितने आएंगे, देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P वो कितने होंगे, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D वो कितने होंगे, 10 होंगे।
पर था ना K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन, इससे आगे जाएंगे 32 आ जाएंगे। ऐसे ही S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, P के अंदर कितने आएंगे 6, D के अंदर कितने आएंगे 10, F के अंदर कितने आएंगे 14 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक स्टूडेंट है जो बड़ी बेचारी जो है टेंशन में होती है कि सर ये 2, 6, 10, 14 आया कैसे, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसका बड़ा सीधा सीधा आंसर है कि भाई देखो, इसको समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर हम करेंगे तो वहां इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, P के अंदर 6 क्यों आते हैं, D के अंदर 10 क्यों आते हैं और F के अंदर 14 क्यों आते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्यों है, यहाँ पर आपको सिर्फ याद करना है कि हाँ इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पहले भी सीख चुके हैं। बोहर कॉन्फ़िगरेशन, जब बोहर का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तो KLMN की टर्म्स में बात करी थी, लेकिन बोहर के कॉन्फ़िगरेशन से हम सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि हमें एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है, एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन। जैसे नील बोहर ने KLM की टर्म्स में बात कही थी, नए कॉन्फ़िगरेशन में हम किसके टर्म्स में बात करेंगे, SPDF के टर्म्स में बात करेंगे। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं और F के अंदर कितने आते हैं, 14 आते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद करके चलनी है। अब इससे आगे चलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं तो देखो ध्यान से देखना कैसे लिखना है। मैंने लिखा है यहाँ 1s। ठीक है, 1s के नीचे लिख लो 2s, 2p, सॉरी 2s के बाद क्या आएगा 3s, ऐसे ही 4s, 5s, 6s एंड 7s। ठीक है, ये ध्यान से समझना। मैं ये भी कह सकता था कि ये डायग्राम है एज इट इज याद करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हम कैसे चीजों को आसानी से कर सकते हैं। तो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, सारे के सारे s मैंने लिख दिए। ऐसे ही मैंने क्या लिखा 2p, फिर 3p, फिर 4p, फिर 5p, फिर 6p और फिर 7p। ठीक है, मतलब सारे के सारे p लिख दिए। एक कम करना है, देखो 1s आता है लेकिन 2s में मतलब 2 ऑप्शन लिख सकता हूँ। ऐसे 3 की जब बात करेंगे तो 3s होगा, 3p होगा, s के बाद p के बाद क्या आता है d, तो यानी कि 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। ठीक है, ऐसे ही एक और कम कर दो 4f एंड 5। ये वो है आपके पास जिससे आप 118 एलिमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, 1s को काटते हुए, फिर 2s को काटते हुए, फिर ये पैरेलल लाइंस आएगी, ध्यान रखना। मैं s को काटते हुए पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। यहाँ 7s को काटूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा, और ऐसे ही इसको काटेंगे तो हमारे पास ये आएगी। ठीक है, 7s के नीचे क्या आएगा 8s। हालांकि 8s तक आज तक हम पहुंचे नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली। आप हमेशा कहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से। ठीक है, कुछ बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि स्टार्ट फ्रॉम 1s, स्टार्ट फ्रॉम 1s। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 1s से शुरू करना है। लेकिन as s crosses, as you cross s, ठीक है, then take U-turn, take U-turn। ठीक है, आपको क्या करना है, U-turn मार के सबसे पीछे पहुंच जाना। सिर्फ इतनी सी बात है और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे तरीके से लिखना आ जाएगा, पूरे तरीके से। ठीक है, मतलब हमने कहाँ से याद रखने लायक, अब मेरे लिए क्या नई चीज आई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी टर्म्स में बात करनी है, SPDF। क्या याद करना है कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P में 6 आएंगे, D में 10 आएंगे, F के अंदर 14 आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको ये डायग्राम आना चाहिए। इसमें हमने कहा यू विल ऑलवेज स्टार्ट
चले जाएंगे, बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। मतलब आपको स्टार्ट 1s से करना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से चले s क्रॉस हुआ, s क्रॉस होते ही आप घूम के पीछे जाएंगे। जब पीछे जाएंगे तो फिर से कहाँ पहुंच जाएंगे, 2s पर पहुंच जाएंगे। भाई s क्रॉस हो गया ना, तो फिर से घूम के कहाँ पहुंच जाना है, सबसे पीछे पहुंच जाना है। पीछे पहुंचोगे तो फिर क्या मिलेगा, 2p, 2p के बाद क्या मिलेगा, 3s, s क्रॉस हो गया तो घूम के फिर कहाँ पहुंच जाओ, सबसे पीछे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे ही s क्रॉस करेंगे हम घूम के कहाँ चले जाएंगे, सबसे पीछे। फिर क्या आएगा, 3p, 3p के बाद क्या आएगा, 4s, फिर से घूम के कहाँ पहुंच जाओ, सबसे पीछे। फिर क्या आएगा, 3d, 4p, 5s, लाइक दिस। फिर क्या आएगा, 4d, 5p, 6s, फिर घूम के कहाँ चले जाओ, सबसे पीछे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सिर्फ ये बात याद रखनी कि स्टार्ट फ्रॉम 1s एंड एज यू क्रॉस s टेक अ यू टर्न, कि आपको यू टर्न मार के सबसे पीछे चले जाना है। ठीक है, अब आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एक एलिमेंट है स्कैनिडियम, जिसका सिंबल है Sc, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21। अब वो कहे कि आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या याद रखना है, स्टार्ट फ्रॉम 1s, के 1 और s। सबसे पहले क्या आएगा, 1s, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिटन एज पावर ऑफ s, p, d एंड f, कि s पावर हम लोग उसको लिखने वाले हैं। जैसे s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो उसकी पावर 1s 2, s पूरा हो गया। उसके बाद घूम के मैं कहाँ गया, पीछे गया, पीछे गया तो मेरे को क्या मिला, 2s मिला, तो लिखा मैंने 2s। फिर से क्या है, s है, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, फिर से मैंने भर दिए, s क्रॉस हो गया, घूम के फिर पीछे जाओ, फिर क्या मिलेगा, 2p मिलेगा। p के अंदर कितने आते हैं, 6 आते हैं, वो भी दे दिए मैंने। 6 के बाद आगे चलो जी, फिर क्या आएगा, 3s, 3 एंड s, s क्या, s के अंदर फिर से हमें याद है कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। घूम के जाओ पीछे, क्या आएगा, 3p, 3p के अंदर कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर से आगे आ जाओ, क्या मिलेगा, 4s, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या, 3 और d। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स गिन लो एक बार। इलेक्ट्रॉन गिनने से पहले याद रखो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखे हुए हैं, पावर में लिखे हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन पावर में है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। एटॉमिक नंबर क्या है, 21। तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर से आगे चलते हैं। देखो, हमारे पास एक एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 35, एटॉमिक नंबर इज 35। आप एक बार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ट्राई करें, पॉज योर वीडियो, ट्राई करें, आप लिखें, कोशिश करें कि क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना है। अब कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे आप, और जैसे ही s को क्रॉस कर जाएंगे तो घूम के पीछे पहुंच जाना है। पहले जो आएगा उसको भरते जाना है। ये 2 3 को नहीं देखना है, सिर्फ किसको देखना है, s p d f को देखना है, और s के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने ही आएंगे। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। क्या आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 35। सबसे पहले क्या आएगा, 1s, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, कितने बच गए, 33। इसके बाद घूम के फिर आओ, कितने आ गए, 2s, s के अंदर फिर से कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बच गए, 31। अब घूम के पहुंचो पीछे, क्या आएगा, 2p, p के अंदर कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए, 10 आ गए, कितने बच गए, 25 बच गए। 2p के बाद क्या आया, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, अब भी कितने बचते हैं, 23। उसके बाद घूम के पहुंचो कहाँ, 3p 6, 3p से आगे चलो कहाँ, 4s, s के अंदर कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर चुका हूँ मैं, 20। अब भी कितने बाकी है, 15 बाकी हैं। तो 4s के बाद घूम के चलो पीछे, 4s के बाद क्या आएगा, 3d, d के अंदर कितने आ गए, 10 आ गए।
ठीक है, अब D के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके बाद क्या आएगा 4p, और P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 5। यू कैन कैलकुलेट जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास वो कितने हैं 35 है। देखो 2 4 10 12 18 20 30 और 5 35। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम सिर्फ क्या चीज याद है, क्या चीज याद रखनी है, दो चीजें कि S में कितने इलेक्ट्रॉन है, P D F में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये डायग्राम आपको आना चाहिए। ये डायग्राम जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाना है, देखो पहले लिख लो 1s के नीचे सारे S है, उसके बाद लिख लो 2p, 2s के सामने 2p, इसके नीचे सारे p है, फिर 3s और 3p के सामने क्या आ जाएगा 3d, इसके नीचे सारे d है, फिर 4 के सामने क्या है 4f और उसके नीचे भी क्या है f। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लेट्स ट्राई वन मोर कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर इज योर 51, एटॉमिक नंबर क्या है 51। लेट्स ट्राई क्या आएगा, मेरे अकॉर्डिंग इट विल बी 1s2। सबसे पहले शुरू करना है 1s से, 1s के बाद क्या आएगा 2s, 2s के बाद क्या आएगा 2p, 2p के बाद क्या आएगा 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 30 हो गए। 4d के बाद क्या आएगा 4p, कितने 6, 4p के बाद क्या आएगा 5s, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, कितने हो गए ये 30, 38 हो गए। ठीक है, 5s के बाद देखो घूम के जब मैं पीछे गया तो मेरे पास क्या आया हुआ था 4d आया हुआ है, और d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स 10। तो देखो कितने हो गए, ये हो गए 10 और 10 20 30 40 48। ठीक है, अब भी 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 4d के बाद क्या आएगा 5p, और d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6, लेकिन है मेरे पास कितने 3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे यहाँ पर 3। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इजी। याद ये चीज प्लस ये चीज, आप इसको पेपर पर लिख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन। The next topic which we have after electronic configuration is the general discussion about periodic table. ठीक है, like periodic table के अंदर 4 ब्लॉक हैं, one is S block, D block, P block और F block। ठीक है, S, P, D and F। S block, P block, D block और F block का सीधा सीधा रिलेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के SPDF से होता है। ठीक है, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे मान लो मैं कोई एक एलिमेंट लिखता हूँ सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, 11 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो कहाँ कर एंटर करता है S के अंदर। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S में एंटर करता है तो ये कौन से ब्लॉक का हिस्सा होगा, S ब्लॉक का हिस्सा होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं आपके पास है आयरन, आयरन एटॉमिक नंबर इज 26, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया D में गया, तो ये कौन से ब्लॉक का हिस्सा होगा, D ब्लॉक के हिस्सा होगा। इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट कौन से ब्लॉक में रखा जाएगा वो डिसाइड होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन S में गया तो वो S ब्लॉक का हिस्सा होगा, P में गया तो वो P ब्लॉक का हिस्सा होगा, और D में गया तो वो D ब्लॉक का हिस्सा होगा। ठीक है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड के इन विच ब्लॉक यू कैन प्लेस योर एलिमेंट। नाउ अब S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, पीछे की है S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। S ब्लॉक में भी कितने ग्रुप हैं 2 ग्रुप हैं 1 एंड 2। यानी कि अगर मान लो S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कहाँ रखेंगे ग्रुप 1 में, 1 इलेक्ट्रॉन इन S। ठीक है, तो वो कहाँ रखा जाएगा ग्रुप 1 में। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इन S तो हम उसको कहाँ रखेंगे ग्रुप 2 में।
ग्रुप 1 का एक और अल्टरनेट नेम होता है एल्कली मेटल। ग्रुप 2 का अल्टरनेट नेम इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया S में तो वो कहाँ आएगा, ग्रुप 1 में। 2 इलेक्ट्रॉन आए तो वो कहाँ आएगा, ग्रुप 2 में। यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे ग्रुप 1 का लिखना हो तो उसके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन लिखना है, और ऐसे ग्रुप 2 का लिखना हो तो उसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी NS1, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन है S में जाएगा। इट में भी 1s1, इट में भी 2s1, इट में भी 3s1, इट में भी 4s1, कोई सा भी S हो सकता है। इसलिए मैं लिखना हो तो उसके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन लिखना है, और ऐसे ही ग्रुप 2 का लिखना हो तो उसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी NS1, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन है S में जाएगा। इट में भी 1s1, इट में भी 2s1, इट में भी 3s1, इट में भी 4s1, कोई सा भी S हो सकता है। इसलिए मैं जनरल वे में लिख रहा हूँ NS1। ऐसे ही दो सेकंड ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी NS2, या S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन NS1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। इससे आगे जब चलेंगे तो देखें आपके पास आ जाता है D ब्लॉक। याद करो आपके पास आया था, जब पीछे D आया था तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी और ग्रुप में, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे ग्रुप में। D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और D ब्लॉक के अंदर ग्रुप भी कितने हैं, 10 ही हैं। यानी कि ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12, टोटल कितने आ गए, 10 आ गए। D ब्लॉक का अल्टरनेट नेम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही P ब्लॉक, P के अंदर कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ग्रुप भी कितने हैं, 6 हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब यहाँ पर P ब्लॉक को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको ना वहां पर एक ऐसी पीरियोडिक टेबल में ऐसी जिगजैग लाइन पढ़ने को मिलती है। इससे नीचे की तरफ आओगे, इससे इधर की तरफ आओगे तो आपको सारी की सारी क्या मिलेंगी, मेटल्स। इससे ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेंगी, नॉन मेटल्स। लेकिन वो एलिमेंट जो इस लाइन के ऊपर ही लिखे हुए हैं, जो इस लाइन के ऊपर ही लिखे हुए हैं, वो क्या होंगे, बेसिकली मेटलॉइड होंगे। दिस विल बी योर मेटलॉइड्स, मतलब मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, और क्या है, मेटलॉइड्स भी हैं। अब P ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप हैं, 6 ग्रुप हैं। ऐसे ही F ब्लॉक एक्चुअल में F ब्लॉक पर कभी भी ग्रुप का क्वेश्चन नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये F के जितने भी, F के अंदर 2 सीरीज है, एक लैंथेनॉइड है और एक एक्टिनॉइड है। लैंथेनॉइड इसलिए कहते हैं कि भाई लैंथेनम एक एलिमेंट है, उसके बाद के 14 एलिमेंट्स लैंथेनॉइड। ऐसे एक्टिनियम एक एलिमेंट है, उसके बाद के 14 एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड बोलते हैं। लेकिन ये 14 के 14 एलिमेंट्स एक सिंगल ग्रुप के मेंबर होते हैं, इसलिए यहाँ कभी ग्रुप का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ P ब्लॉक पर। P ब्लॉक के अंदर अलग अलग फैमिलीज का अलग अलग नाम है। जैसे ग्रुप नंबर 18 है, इसका नाम क्या है, नोबल गैसेस। कौन कौन से हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ऐसे ग्रुप 17 का नाम क्या होता है, हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्केटीन। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चल्कोजेंस। ठीक है, चल्कोजेंस। तो अलग अलग नाम है, वो आप देख सकते हैं वहां पर। लेकिन अब इस पे अगर मुझे क्वेश्चन पूछना हो, तो मैं इस पे क्या पूछूंगा, देखिए इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो ये बनता है कि भाई किसी एलिमेंट की अगर आपको पोजीशन बतानी हो कि वो कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है, ग्रुप और पीरियड मुझे बताना है। यानी कि हम क्या डील कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रुप फाइंड आउट करना है। ग्रुप के लिए सबसे आसान मैं आपको बताता हूँ कि आप उसका क्या लिखें, बोहर्स कॉन्फ़िगरेशन लिखें। क्या लिखना है उसका, बोहर का, सॉरी नॉट फॉर ग्रुप, मैं सबसे पहले बात करूंगा पीरियड की। पीरियड के लिए आप क्या लिखेंगे, बोहर्स
कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बोहर कॉन्फ़िगरेशन में ये ध्यान रखें आप कि जैसे बोहर का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे करके, तो यही हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, क्या नंबर है वो? हमें लिखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32, ये आपको लिखना है। लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, 2, 8, 8, 18, 18, 32, एक्चुअल में ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है, 118 एलिमेंट की पूरी पीरियोडिक टेबल है। ध्यान दो, पहले ग्रुप में देयर आर 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम। आप एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोल लें, देन लिसन टू मी कि फर्स्ट पीरियड में देयर आर 2 एलिमेंट्स, वन इज हाइड्रोजन, अनदर इज हीलियम। उसके बाद सेकंड पीरियड में आओ, आपको 8 एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन कौन से? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। थर्ड पीरियड में आ जाओ, आपको फिर से 8 मिलेंगे। कौन कौन से? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद आप आगे जाएंगे, सिलिकॉन है, आपके पास फास्फोरस है, आपके पास सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। यानी कि पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में फिर से 8 एलिमेंट, और 14th पीरियड में अगर आप जाएंगे तो आपको 18 एलिमेंट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कि भाई आओ, वापस आओ, कैल्शियम 19, सॉरी पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, 2 एलिमेंट ही हो गए। उसके बाद 10 डी क्या थे? स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 10 एलिमेंट ही आ गए। उसके बाद पी के 6 एलिमेंट है, यानी कि जो फोर्थ पीरियड आपके पास उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 18। ऐसे ही फिफ्थ में भी कितने आएंगे? 18। सिक्स्थ में कितने आएंगे? 32। सेवंथ में भी कितने आएंगे? 32। इस 32 में से 14, याद रखना, इस 32 में से 14 लेंथेनॉइड की फॉर्म में नीचे लिखे हुए हैं। आप जब एटॉमिक नंबर से ट्रैक करोगे ना, 57 के बाद 58 कहाँ गया, आपको नीचे मिलने वाला है। ऐसे ही यहाँ जो 32 है, 32 में से 18 तो मेन बॉडी में है और 14 कहाँ है? नीचे की तरफ है। तो ये आप अगर किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में लिखते हैं तो आप उसका पीरियड नंबर आसानी से बता सकते हैं। आई रिपीट, पीरियड नंबर आसानी से बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो सोडियम का ही मुझे बताना हो कि सोडियम का पीरियड नंबर बताना है, सोडियम का क्या बताना है? पीरियड बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो 2, 8 और 1, हो गया ना, 11 हो गया। तो कौन सा पीरियड आ गया? ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, और ये कौन सा? थर्ड पीरियड। यानी कि आपको कहाँ मिलेगा? थर्ड पीरियड में मिलेगा। फिर से समझते हैं, हमारे पास आता है क्या? हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास है Fe है, एटॉमिक नंबर 26 है। 26 का पीरियड बताना है मुझे। पीरियड कैसे निकालेंगे? 2, 8, 8 एंड फिर से 8, तभी तो 26 आएगा। भाई देखो, 2 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 18 तो आ गए। उसके बाद 8 और बच गए, वो किस में आएंगे? नेक्स्ट में आएंगे। तो कौन सा पीरियड आ गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। तो पीरियड बताना तो मेरे लिए इतना आसान है। कैसे? नेल बॉहर की, मतलब इस टर्म्स में कॉन्फ़िगरेशन लिखो और देखते जाओ, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया। मान लो एटॉमिक नंबर था 57, 57 का बताना है। 57 का लिख लो 2, 8, 8, 18, ठीक है, और फिर से क्या? 18, और फिर से क्या आ जाएगा? 3। तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये कौन सा पीरियड है? सिक्स्थ पीरियड में। यू कैन चेक इट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि ये आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कहां पर? उसके बाद आ जाओ आप ग्रुप के नंबर पर। ठीक है, तो पीरियड अगर मुझे बताना हो तो कैसे बताऊंगा? ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखकर। अब बात करते हैं पीरियड, सॉरी ग्रुप। ग्रुप के अंदर ग्रुप नंबर अगर मुझे बताना हो तो देखो, वो या तो एस में होगा, या पी में होगा, या डी में होगा, इसमें से किसी में होगा। ठीक है, अब इसमें आपको एक सीधी सी बात याद रखनी है कि ग्रुप नंबर इन एस ब्लॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस। ये किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शेल की। किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शेल की। ठीक है, बैलेंस शेल में अगर मान लेते हैं एस आया तो वो कौन से ब्लॉक का
का हिस्सा होगा s का। अगर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ तो वो कौन से ग्रुप में, फर्स्ट में। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में। यानी कि s के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसी ग्रुप का हिस्सा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20 के हिसाब से देखो, अगर मुझे बताना हो क्या पीरियड बताना हो इसका, तो पीरियड के लिए तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 8 8 एंड 2। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड कौन सा पीरियड, फोर्थ पीरियड। कौन सा पीरियड, फोर्थ पीरियड। उसके बाद देखो अगर मुझे इसका ग्रुप भी बताना होता तो ग्रुप के लिए मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मॉडर्न कहता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन से ग्रुप का हिस्सा होगा, सेकंड ग्रुप का। जैसे सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था। सबसे बाहर वाले की देखना है, सबसे बाहर जो है 1 इलेक्ट्रॉन था, तो वो कौन से ग्रुप का हिस्सा था, फर्स्ट ग्रुप का। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से ग्रुप का हिस्सा होगा, दूसरे का। यानी कि s ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस s। ठीक है, अब आ जाओ ग्रुप नंबर इन डी। ग्रुप नंबर इन डी ब्लॉक, तो इसके लिए देखो कि डी ब्लॉक शुरू कहां से होता है, शुरू होता है वो 3 से, खत्म कहां होता है 12 पर। अगर मान लो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ आएगा 3 में। डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ आएगा, 3 है तो यहाँ आएगा, 4 है तो यहाँ आएगा, 5 है तो यहाँ 6 7 8 9 और 10। यानी कि ग्रुप नंबर इन डी ब्लॉक कैसे निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी प्लस 2। देखो ना, डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 3 है, 1 प्लस 2 3 है। अगर मान लो किसी दिन उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए, जैसे Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना है 26 के हिसाब से D6 बनता है। कितना बनता है, D6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D, वो तो आ गया 6 प्लस 2, यानी कि ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से देखते हैं कि एक है आपके पास क्रोमियम, ये कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। 24 होने का मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। ठीक है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन आए, तो इसमें ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी दैट इज 4 प्लस 2, तो कौन सा ग्रुप आ जाएगा, 6th ग्रुप आ जाएगा। तो यानी कि ग्रुप नंबर इन डी ब्लॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी प्लस 2। ऐसे ही ग्रुप नंबर इन पी, ग्रुप नंबर इन पी ब्लॉक वो क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी प्लस 12। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी प्लस 12। देखो कहां से शुरू करना है, 13 से, यानी कि पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आया तो वो कहां आएगा, 13 में। 2 आए तो कहां, 14 में। 3 आए तो वो कहां, 15 में। 4 आए तो वो कहां, 16 में। और 5 आए 17 में, 6 आए तो 18 में। यानी कि पी के जितने भी इलेक्ट्रॉन है आपको उसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 12 प्लस करना पड़ेगा। जैसे ही आप 12 प्लस करेंगे आपके पास उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 57। सपोज करो क्या है, 57। 57 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन बोहर के हिसाब से 2 8 8 18 18 एंड 3। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6th पीरियड आ गई है कि पीरियड तो सीधा सीधा पता चल गया कौन सा, 6th। अब इसके लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d, कितने बच गए ये, 2 10 और 10 20 30 30
40 48 एंड 5p 6 दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी में गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी में गया। तो डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। तो ग्रुप नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी वो कितना है? 1 प्लस उसमें कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो कितना ग्रुप नंबर आ जाएगा? 3। ठीक है, तो पीरियड को जब भी आपको बताना हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन को इस फॉर्म में लिख लो। अगर आपको ग्रुप में बताना है तो आप कैसे लिखेंगे? ग्रुप नंबर के लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। ये सबसे बड़ा टॉपिक था। सबसे ज़्यादा बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको बार बार। और दूसरा जो है, आपको ये देखना पड़ेगा कि पोजीशन पे एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा किस पोजीशन पर रखा जाता है, उसका ग्रुप नंबर क्या, उसका पीरियड नंबर क्या। तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, इन द नेक्स्ट रिविजन लेक्चर, वी विल ट्राई टू कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है, सो टिल देन प्रैक्टिस हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।